اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، آپ نے کچھ دیر پہلے قرآن عظیم کے مضامین کے بیان کی 27ویں نشست کا پہلا حصہ سماعت فرمایا۔ استفادہ ہے ان نشستوں میں قرآن عظیم فرقان مجید کے مضامین کے بیان کا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس استفادہ میں ہم مدد لے رہے ہیں مرشد کریم، مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث والقرآن، غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے۔ ہم 27ویں نشست کے پہلے حصہ میں طواف کعبہ کے اعتبار سے آئے بینہ، جس کا ترجمہ اور وہ منظر یاد میں لاؤ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے لگے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، کی ذیل میں ہم یہاں پر تھے کہ ہمیں ایک وقفہ کرنا پڑا اور دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم یہاں تھے کہ تاریخ مکہ میں ازرقی لکھتے ہیں، طواف کی نیت سے گھر سے نکلنے والا ایسا ہے جیسے وہ رحمت کے دریا میں چلنے والا ہو، جب وہ شخص مطاف میں پہنچتا ہے تو ایسے ہے جیسے وہ دریائے رحمت میں غوطے لگا رہا ہو، اور جب وہ طواف شروع کرتا ہے تو ہر قدم کے عوض اسے 500 نیکیاں ملتی ہیں، اور قدم اٹھانے کے بعد جب وہ پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو اس کے 500 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جب زائر کے قدم مقام ابراہیم کی طرف بڑھتے ہیں، فرشتے پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تیرے پہلے گناہ تو دھل کر ختم ہو گئے، اب آئندہ زندگی احتیاط سے گزارنا، اب اعمال صالحہ بجا لانا اور زندگی نئی کرنے کی سعی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اگلا حصہ کتنا والہانہ ہے، یہ مراد پوری ہونے کی منتہا ہے، اور اجابت کی کتنی زبردست دعا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہاں ارمانوں کے ملجا و ماوا، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، اور تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ الفاظ کے در و بست سے چشمہ حیوان پھوٹ رہا ہے، اور تعبیر کعبہ کی ہر ادا سے خلوص عمل کی روشن کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ قاری قرآن کے وجود میں امید کی کرنیں کھپ کر اسے اس عقیدہ سے روشناس کراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ آیت کا عمود اس شعور کا سراغ لگانا ہے جو اللہ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھا ہے۔ عبادت کی خاطر دنیا میں تعمیر ہونے والا یہ پہلا گھر ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو اس سے وابستہ کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہی نے فرمائی۔ بعد کے زمانوں میں امالکہ نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد بنو جرہم نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 2 صدیاں پہلے کسی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی۔ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے اسے پھر تعمیر کیا گیا۔ اس تعمیر کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ میں حصہ لیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے جب اعلان خلافت کیا تو آپ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، لیکن بدبخت یزیدیوں نے منجنیق کے ساتھ کعبہ پر پتھر برسائے اور اسے منہدم کر دیا۔ یزید پلید کا کوئی ایک جرم تھوڑا ہی ہے کہ اس بازی گر کے لیے کرم کے پر پھیلائے جائیں۔ یہودیوں کی سازش سے اسلام کی حاشیہ نشینی یزید اور حجاج بن یوسف کے وکیلوں کو میسر آ گئی اور تاریخ اسلام پارا پارا کر دی گئی۔ کعبہ کو گرانے والوں پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائی۔ ترجمہ: پروردگار ہمارے بنا ہمیں اپنا خاص نیاز مند اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری بندگی بجا لانے والی ہو، اور ہمیں حج کے طریقوں کا علم بخش اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قرآن مجید کی اس آیت اور اس کے بعد آنے والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حضور 5 عرضیاں دیتے ہیں، دعائیں، درخواستیں اور التجائیں پیغمبرانہ شعور کا مکمل مظہر ہیں۔ ربنا کہنا ہی باب کرم سے اتنا گہرا وابستہ کر دیتا ہے کہ دعا کی تلاوت کرنے والے پر ایک مستانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کی والہانہ کیفیات کا عالم کیا ہوگا اور اسماعیل علیہ السلام کی جاں گزاری کی حالت کیسی ہوگی۔ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل جنت کے تمام پھولوں اور گلوں کا عرق نچوڑ کر اپنی دعاؤں میں سمو رہے ہیں، اور آسمانی سورج کی تمام شعائیں ابراہیمی دعاؤں میں مذکور سراج منیر کے قدموں میں بیٹھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 درخواستیں یہ ہیں۔ پہلی، ہمیں توفیق دے کہ ساری زندگی تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھیں۔ دوسری، ہماری اولاد میں ایک امت ہو جو نفس گزاری اور فدائیت کا مجسمہ بنی رہے۔ تیسری، ہمیں پرستش، عبادت اور قربانی کے طریقے سکھا اور ان کے اندر جو روحانی جلوے ہوتے ہیں ان کے مشاہدے کی توفیق دے۔ چوتھی، اپنی رحمت کا رخ ہماری طرف موڑ اور توبہ قبول فرما۔ پانچویں، اور ہماری اولاد میں سے ایک عظیم اور فضیلت والا رسول اٹھا جو تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں پاک کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ خلوص اور پیار کے پرچم برداروں نے 5 دعاؤں سے 5 نوروں کا خمیر روحانی انداز میں ایسا گوندا کہ نور افشانی کے عرش اعظم سے روشن راہوں سے ہوتی ہوئی یہ روشنی بوتراب تک جا پہنچی۔ کوئی مانے نہ مانے اور سمجھے نہ سمجھے، قرآنی فکر تو ذریتنا کے 12 برجوں سے دانا لوگوں کی روحوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ سلام ابراہیم پر، سلام اسماعیل پر، اپنی اولاد کو نوازے رکھا، اور ابو حیان ادلسی لکھتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں اس منہاج عرفانیت سے آگاہ کرتی ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے اپنی اولاد کے لیے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ قوم اور امت میں بڑے مانے جاتے ہیں، اگر ان کی اولاد صراط مستقیم پر چلے تو عوام کے لیے ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دین حق پر قائم رہنے والے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے، آپ شرک اور
बुत परस्ती से बेजार थे। ये सिलसिला क़यामत तक कायम रहेगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान फजीलत में मारूफ नातिया शेर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अगली आयत का तर्जमा समात फरमाइए। रब हमारे इनमें इन्हीं में से एक अजीम रसूल उठा जो तेरी आयतें तलावत करे और सिखाए इन्हें तकदीर का राज और हिकमत और इन्हें साफ सुथरा करता ही रहे। बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। और कौन है जिसने इब्राहिमी तरीके से रुख फेरा सवाए उसके जिसने अपने आप को हमाकत से हलाक कर दिया। और बेशक इन्हें तो हमने दुनिया में भी अपने लिए चुन लिया और आखिरत में तो वो मुकर्रबीन में से होगा। जब कहा उनके परवरदिगार ने उनसे सर तस्लीम खम कर, आपने अर्ज की सर तस्लीम खम करता हूं जानू के परवरदिगार के। इब्राहिम ने इस तरीके की वसीयत अपने बेटों को भी की और याकूब ने भी फरमाया, ए मेरे बेटो, अल्लाह ताला ने चुन लिया तुम्हारे लिए इस दीन को, लिहाजा जब तक तुम्हें मौत ना आ जाए इस्लाम पर तुम डटे रहना। आयत का तर्जमा और उसकी तफसीर में उतरते हैं। रब हमारे इनमें इन्हीं में से एक अजीम रसूल उठा जो इन पर तेरी आयतें तलावत करे और सिखाए इन्हें तकदीर का राज और हिकमत और इन्हें साफ सुथरा करता ही रहे। बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा की रूहानी मुसर्रतों में डूब तामीर कायनात के मरहला की तरफ बढ़ते हैं। नत्क को आली फिक्र की दहलीज मुयस्सर आती है, नुत्क को आली फिक्री की दहलीज मुयस्सर आती है। दुआया जुमले राज़े कायनात को छूने लग जाते हैं। एक मुफक्कर ने कहा था कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती, पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। वाह वाह वाह, फिर समात फरमाइए। पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। ये एक जज्बाती और तिलस्माती जुमला है, लेकिन यह हकीकत है कि दुआए इब्राहिम एहसासात की झील में कमल का फूल है, दुआए कौमों की मंजिल का निशान होती है। और वो हस्तियां जिनका वजूद आतिश नमरूद की तपश खत्म करके गुलजारे अदन के जलवे बांटता हो, उनकी दुआएं कितनी कासमे इसरार होती हैं। इब्राहिम की दुआ खामोश पानी की तरह फजाओं में मुर्ताश हुई। लफ्जों के शबाब ने आरज़ू की खनक को तड़पाया, लफ्जों के न्याज ने शबाब ने आरज़ू की खनक को तड़पाया, लफ्जों के न्याज ने बेनियाज के दरवाजे पर दस्तक दी। फरिश्तों ने अबर बिहारी के पेट को खुशबू से लबरेज कर दिया। दुआए इब्राहिमी अर्श की तरफ लपकी। शजर तूबा ने मुख्तर मुअत्तर मांबर और मुनज़्ज़ा फूलों की पत्तियों में लफ्जों को लपेटा। कुरान हकीम कहता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल सुच्चे मोतियों की लड़ी बन गया। ए हमारे परवरदिगार, इन्हीं में से एक रसूल मबऊस कर मिनहुम का मुरज्जा जुर्रियत है। माना ये हुआ कि इब्राहिम की जुर्रियत ही से रसूल जलवागर हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, मैं अपने वालिद इब्राहिम की दुआ हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए जो कुछ मांगा, अल्लाह ने वही कुछ अता फरमाया। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने अपने इस एहसान का जिक्र फरमाया है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही सिफात गिनी है जो आपकी जद ने मांगी थी। पहली सिफ्त यह कि वो तलावत आयात करने वाले हो, दूसरी सिफ्त यह कि वो किताब की तालीम देने वाले हो, तीसरी सिफ्त यह कि वो हिकमत सिखाने वाले हो, और चौथी सिफ्त यह कि वो तज़किया करने वाले हो।
जिंदगी की तामीरी बुनियादें यही 4 चीजें हैं: जहन, दिल और आज़ा का फिक्री, ईमानी, अमली और रूहानी तज़किया उखरवी नजात की अव्वलीन बुनियाद है। तलावत आयात तकवीनी और तशरीही मोजज़ात के साथ फिक्री, दावती और यकीनी इर्तबात है। मुमकिन है तलावत से मुराद कुरान के महज पढ़ने से रूहानी मसमरात की तरफ इशारा हो और तालीम किताब से मुराद बाकायदा इस इल्म की तह तक रसाई पाना हो और यूं ही हिकमत इल्म और रूहानी मुकाशिफात को अमली मैदान में बरतने का नाम हो। जिंदगी तो बस यही है तर्जमा। और कौन है जिसने इब्राहिमी तरीके से रुख फेरा सवाए उसके जिसने अपने आप को हमाकत से हिलाक कर दिया, और बेशक इन्हें तो हमने दुनिया में भी अपने लिए चुन लिया और आखिरत में तो वो मुकर्रबीन में से होगा। इस आयत की शान नज़ूल में उलमा ने तीन रवायात नकल की हैं। हजरत कतादा फरमाते हैं, जब यहूद व नसारा ने दीन इब्राहिम से इनहराफ किया और तरह तरह की इख्तरात को शामिल दीन कर लिया, इस पर इनके कौमी और मिल्ली रवैयों पर गिरफ्त हुई और यह आयत नाजिल हुई। दूसरी रवायत वो है जिसे अल्लामा खासिन ने नकल किया कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद आपने अपने 2 भतीजों को दावत दी, एक का नाम सलमा था और दूसरे का महाजिर। आपने तौरात के हवाले भी दिया कि अल्लाह ने फरमाया, मैं इस्माइल की औलाद में एक नबी भेजने वाला हूं जिनका इसमें गराबी अहमद होगा। इस इस्तनाद के बावजूद महाजिर ने ईमान कबूल करने से इनकार कर दिया और उस पर कुरान मजीद की आयत उतरी। अल्लामा साबूनी ने यहूद व नसारा के शिरकिया अकीदा के हवाला दिया और कहा, इन लोगों की ये जालिमाना रवश इस आयत के नजूल का सबब बनी। आयत में इस्तफहाम कौन सा है? काजी सनाउल्लाह पानीपती और अल्लामा करतबी ने इस्तफहाम पर 3 इम्कानात नकल किए हैं। पहला ये कि इस्तफहाम इनकारी है, दूसरा ये कि इस्तफहाम इस्तबादी है, और तीसरा ये कि इस्तफहाम ताजीबी है। पहली सूरत में माना होगा, कौन है जो दीन इब्राहिम से इनाराफ करे। इशारा इस तरफ है कि कोई अक्लमंद आदमी इब्राहिमी दीन से इनाराफ नहीं कर सकता। दूसरी सूरत में माना यह होगा कि बहुत बाईद है ये बात कि एक शख्स अक्लमंद भी हो और फिर दीन इब्राहिम से इनहराफ भी करे। और तीसरी सूरत में मफहूम यह होगा कि वो शख्स जो इतना अजीम दीन तर्क कर देता है उसका मामला कितना ताज्जुबनाक है। ताबीर में 2 बातों की अहमियत। पहली बात यह है कि यहूदी कौम को बेनकाब किया जा रहा है कि उनके दावे इब्स हैं, वो लोग हक व हकीकत से मुनहरिफ हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि यहूदियों का सौ में बातिल खत्म किया जा रहा है कि वो लोग कोई बरगजीदा चीज है। वो कम बख्त अपनी कम अकलियों की वजह से अपना मकाम खो चुके हैं। अब अगर इनका कोई हवाला है तो सिर्फ ये है कि वो जमीनी मखलूक में अशर और अश्तन कौम है, शरीर और शैतान। इब्ने कीसान और जज्जाज की अहम राय। आज की तफसीर में इब्ने कीसान और जज्जाज ने लिखा कि दिल की कम अकली से मुराद खुद को पहचान न पाना है। यह मकूला यहया बिन माज का है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। यह मुसल्लमा हकीकत है कि आज के मादी दौर में इंसान के अंदर ही एक तसादुम पपा है। फिरकावाराना और मुतशद्दिदाना रुझानात ने अज़हान और अरवा को बदतरीन तनाव का शिकार बना दिया है। हमारे अंदर इस मर्ज की वजह से तख्लीकी सोते खुश्क होते जा रहे हैं, रूहानियत के ज़ोक मुरझा रहे हैं, ज़हनी तसादमात के नतीजे में मख्फी जोहरों की नशोनुमा नहीं होने पा रही, शख्सियतें टूट फूट का शिकार हैं। असल में इंसान खुदी के जोहर से महरूम हो रहा है। इरफान ज़ात की खामियों ने हमें इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी में तरह तरह के फसादात की लपेट में ले लिया है। कुरान मजीद का तज्जिया दिलचस्प है। एक वो लोग
हैं जिनके दिल अक्लें रखते हैं और एक वो हैं जिनके नफ्स कमीने और बेअक्ल हो चुके हैं। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान ही यहां से शुरू होता है जब उसका दिल कम अक्ल हो जाता है, और आम तौर पर यह कैफियत इनहराफ से पैदा होती है। अस्तफा फी दुनिया से मुराद, ज़ेरे तफसीर आयत में अहम चीज ये जानना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चुन लेने से मुराद क्या है। बेजावी के महशी शेखजादा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम को रसालत और नबुव्वत और अपनी खिलत के लिए मुंतखब फरमा लिया, और अल्लामा कर्तबी ने लिखा कि आपको हर किस्म की आलाइशों से पाक रखा। बिलाशुबा शख्सियतों की सफवत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है। आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि वो आखिरत में सालहीन से होंगे। इस जुमले से कारी कुरान के दिल में ये तशवीश पैदा की जा रही है कि दुनिया हो या आखिरत, बासलाहियत लोगों की सोहबत नूर रखती है। भूखा शख्स ग़िज़ा मौजूद होने के बावजूद इसे इस्तेमाल में न लाए और प्यासा आदमी पानी मौजूद होने के बावजूद जिगर को ठंडा करने का एहतमाम न करे तो कम अक्ली और सफिया नफसी नहीं तो और क्या है। नेक लोगों की सोहबत में आना नूर है। नफ्सियाती एतबार से आयत हमें सिखलाती है कि बाज़ चीज़ें इनहराफ की पगडंडियों पर उलझाने वाली होती हैं और बाज़ तामीरी वसाइल की मदद से फजीलतों से हमकनार करने वाली होती हैं। इंसान में खुद शनासी और इरफान नफसी, अंदाज फिक्र, अमल और रूहानियत में खुशगवार इनकलाब पैदा करती है। इस काला वाली आयत का तर्जमा, जब कहा उनके परवरदिगार ने उनसे सर तस्लीम खम कर, आपने अर्ज की सर तस्लीम खम करता हूँ जहान के परवरदिगार के लिए। कुरान मजीद का आगाज अल्लाह ने अपने बंदे की जुबान में अपनी सिफ्त रबूबियत का एतराफ करवा कर अपनी तहमीद के सबक से किया है। यहाँ तक इंशाअल्लाह जो 27वीं नशिस्त का दूसरा हिस्सा आपकी समातों की नजर किया है, इससे आगे इंशाअल्लाह अज़ीज 28वीं नशिस्त में अगले मज़ामीन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने की इज्जत हासिल करेंगे और अपने लिए बाइस तकरीम और बाइस तरबियत होने के साथ साथ आपकी खिदमत में गुजारिशात, तर्जमा व तफसीर, तबसरा अज़ा हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दजुल्लाहुल आली मुर्शद करीम से पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक के हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला आपकी हमारी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह नूर में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा कर हमारे मरहूमीन की बख्शिश, हमारे बीमारों के लिए शिफायाबी का सबब और हमारी मचलती आरज़ुओं के लिए उनकी तकमील का ज़रिया और असबाब अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली नशिस्त 28वीं नशिस्त में मुलाकात होती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलातुन नूर काउंसिल, कोहसार।